average weight of a class of 24 students is 45 kg. If the weight of the teacher be included, the average rises by 400 gram. The weight of the teacher is. So first of all, the teacher's weight should be 45 plus, right? Now, what is the average increased weight? 400 gram or 0.4 into 25. Why 25? Because teacher's weight is also included, right? So 0.4 into 25 is equal to 10. So 45 plus 10 is equal to 55, which is in option B again. So option B is the correct answer over here, right? Now let's have the next question. The average weight of 16 boys in a class is 48 kg and that of the remaining 8 boys is 45 kg. Find the average weight of all the boys in the class. So what is the minimum average weight here? 45 kg plus, right? Now what is the increased weight here? 3 kg into 16, which is equal to 48, divided by 16 plus 8, 24, which is equal to 2. So 45 plus 2, which is equal to 47 kg, which is in option A. So option A is the correct answer over here, right? Now let's have the next question. If the average marks of 3 batches of 45, 60 and 45 students respectively is 50, 55, 60, then average marks of all the students is. Now again, what is the minimum average marks here? 50, right? What is the increased marks here? 5 into 60, which is 300, and here 10 into 45, which is 450, total 750, divided by here 45 plus 45, 90 plus 60, which is 150. So 750 divided by 150, which is equal to 5. So 50 plus 5, which is equal to 55, is the average marks of all the students, which is in option D. So option D is the correct answer. Now moving on to the next question. The average age of husband, wife and their child 3 years ago was 27 years and that of wife and the child 5 years ago was 20 years. The present age of the husband. Okay, now the present age of husband, wife and child is 27 into 3, 81, plus here 3 years ago. So the present age is 3 into 3, 9, which is equal to 90, right? Now what is the age of wife and child in present? 20 into 2, 40, plus 5 into 2, 10, 50, right? So the husband's age, present age is 90 minus 50, which is 40 years, which is in option C. So option C is the correct answer over here, right? At present, the ratio between the ages of Amar and Rajesh is 4:3. After 5 years, Amar's age will be 25 years. What is the age of Rajesh at present? तो हम इसको पहले x लेकर करेंगे. क्या कह रहा है? अमर और राजेश का एज मान लो 4x और 3x, ठीक है. आफ्टर 5 years अमर्स एज विल बी 25 years, यानी 4x प्लस 5 इज इक्वल टू 25. तो 4x कितना होगा? 20, x कितना होगा? 5. क्या पूछ रहा है? राजेश का प्रेजेंट एज पूछ रहा है. राजेश का प्रेजेंट एज कितना है? 3x. 3x इज इक्वल टू 15 years, विच इज इन ऑप्शन बी. तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक. अब देखो बिना x लिए कैसे करोगे. क्या वैल्यू गिवन है? अमर की एज की वैल्यू गिवन है. आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years अगर 25 है तो प्रेजेंट में क्या होगी उसकी एज? 20 years. क्वेश्चन में क्या है? 4 इज इक्वल टू 20, 1 इज इक्वल टू कितना? 5. तो राजेश की प्रेजेंट एज क्या है? 3 इज इक्वल टू कितना होगा? 15 years, ठीक. द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए फादर एंड हिज सन इज 60 years. 6 years ago father's age was 5 times the age of the son. After 4 years son's age will be, ठीक है. 6 years ago क्या रेशियो है फादर और सन की? अगर सन x है तो फादर कितने होंगे? 5x, ठीक है. तो अभी उनकी क्या एज होगी? ये ऐड कर दो 6x प्लस ये 6 years एगो है तो यहाँ भी 6 years, यहाँ भी 6 years, कितना होगा? 12 इज इक्वल टू क्या कह रहा है? सम कितना है? 60 years, ठीक है.
तो 6x कितना होगा 48, x कितना होगा 8। आफ्टर 4 ईयर्स सन से एज पूछ रहा है तो +4 कर दो, कितना आएगा 12 ईयर्स विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो बिना x लिए कैसे करोगे। उनकी एज की रेशियो क्या है 6 ईयर्स एगो है, सन की 1, फादर की 5। ठीक है, सम क्या कह रहा है प्रेजेंट एज में पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको 6 ईयर्स एगो ले आओ, यानी यहाँ भी 6 माइनस करोगे, यहाँ भी 6 माइनस करोगे तो 12 माइनस करोगे 60 से तो कितना होगा 48। तो यहाँ कितना है 6 इज इक्वल टू 48, 1 इज इक्वल टू कितना 8। ठीक है, आफ्टर 4 ईयर्स कितना कह रहा है +4 ऐड कर दो 12 ईयर्स। ठीक है, if 4 years are subtracted from the present age of Anil and remainder is divided by 18, then the present age of his grandson Sonu is obtained. If Sonu is 3 years younger to Mohan, whose age is 5 years, then what is the age of Anil? ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लास्ट से करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है सोनू इज 3 years younger टू मोहन, जिसकी एज क्या है 5 years है, यानी 5 से 3 माइनस करो तो सोनू की एज क्या है 2 है। ठीक है, क्या कह रहा है 4 years आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द प्रेजेंट एज ऑफ अनिल। अनिल की एज मान लो x है, -4 करोगे, रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, डिवाइड बाय 18 करो, इज इक्वल टू क्या कह रहा है प्रेजेंट एज ऑफ सोनू आ रहा है जो कि 2 आया था। तो क्या होगा x कितना आएगा यहाँ 36 + 4 40 years विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Raman got married 8 years ago. His present age is 6/5 times his age at the time of his marriage. Raman's sister was 12 years younger to him at the time of his marriage. The present age of Raman's sister. ठीक है, रमन की प्रेजेंट एज क्या है 6/5 टाइम्स ऑफ मैरिज, यानी अगर मैरिज की एज 5 है तो प्रेजेंट क्या होगी 6, मैरिज 5, प्रेजेंट 6। इसके बीच डिफरेंस क्या है 1। 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन में क्या है रमन गॉट मैरिड 8 years एगो कह रहा है, यानी 1 इज इक्वल टू 8। यहाँ तक रखो, देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। रमन सिस्टर वॉज 12 years younger टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। क्या कहा था मैंने, डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, चाहे 4 साल बाद हो 4 साल पहले हो कुछ भी हो। यहाँ क्या कह रहा है रमन सिस्टर वॉज 12 years younger टू हिम एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज। एट द टाइम ऑफ हिज मैरिज हो या प्रेजेंट हो 12 years younger ही रहेगी रमन सिस्टर। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रेजेंट एज निकालो, 1 इज इक्वल टू 8 है तो 6 इज इक्वल टू कितना होगा 48, 12 माइनस कर दो 36 years विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। एज प्रेजेंट एज इज 2/5 ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। आफ्टर 8 years ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। हाउ ओल्ड इज मदर एट प्रेजेंट। ठीक है, ए की प्रेजेंट एज क्या है 2/5 ऑफ मदर, यानी अगर मदर की एज 5 है तो ए की कितनी होगी 2। ठीक है, क्या कह रहा है आफ्टर 8 years ही विल बी हाफ ऑफ द एज ऑफ हिज मदर। 8 साल बाद अगर मदर 2 है तो ए कितना होगा 1। यहाँ डिफरेंस देखो सेम नहीं है, यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 3 है, तो डिफरेंस को सेम करो जैसे मैंने रेशियो प्रोपोर्शन में कहा था। यहाँ डिफरेंस 1 है तो 5 2 सेम रहेगा, यहाँ डिफरेंस 3 है तो इनको 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 × 3 कितना होगा 6, 1 × 3 3। देखो अब डिफरेंस सेम आया, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो 1 इज इक्वल टू क्या कह रहा है आफ्टर 8 years 1 इज इक्वल टू 8। तो प्रेजेंट एज मदर की क्या होगी 5 × 8 40 years विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगर 8 years पूछता तो हम 6 की निकालते 48। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। Q is as much younger than R as he is older than T. If the sum of the ages of R and T is 40 years, what is the age of Q? इस क्वेश्चन को इक्वेशन लेके भी कर सकते हो, बिना इक्वेशन के भी कर सकते हो। इक्वेशन से कैसे करोगे, देखो क्या कह रहा है Q is as much younger than R कह रहा है, यानी R minus Q is equal to as he is older than T, Q minus T होगा। ठीक है, तो R प्लस T कितना होगा 2Q। R प्लस T की वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में 40 years, तो 2Q कितना होगा 40, Q कितना आएगा 20 years विच इज इन ऑप्शन बी। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये तो गया इक्वेशन से। बिना इक्वेशन से कैसे करोगे, देखो
Q यहाँ पे T, यहाँ पे R, क्योंकि Q इज आज मच यंगर कह रहा है R से और ओल्डर कह रहा है T से। अगर T 1 है तो Q कितना होगा 2, R कितना होगा 3, आज मच यंगर आज मच ओल्डर हो रहा है। ठीक, क्या कह रहा है, सम ऑफ द एजेस ऑफ R एंड T 40 ईयर्स, यानी 4 इज इक्वल टू कितना होगा 40, तो 1 इज इक्वल टू कितना होगा 10, 2 इज इक्वल टू कितना होगा 20 ईयर्स। ठीक, 5/9 of the number of students are boys and rest are girls. 3/5 of the number of boys are below 20 years of age and 3/4 of the number of girls are 20 years or above 20 years of age. If number of students below 20 years of age is 1200, then find 5/9 of the total number of students in the school. ठीक है, यहाँ वैल्यू सिर्फ गिवन है, क्या बिलो 20 ईयर्स का वैल्यू गिवन है। ठीक है, हम इसको x लेके कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे, बिना x लिए करेंगे। देखो, इन ए स्कूल 5/9 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बॉयज कह रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 900 है। 5/9 बॉयज है तो बॉयज कितने हो गए 500, गर्ल्स कितने होंगे 400। ठीक है, बिलो 20 ईयर्स हमें निकालना है क्योंकि वैल्यू उसी का गिवन है। ठीक, तो यहाँ क्या कह रहा है 3/5 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर बिलो 20 ईयर्स। 500 का 3/5 कितना होगा 300। फिर क्या कह रहा है 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ गर्ल्स आर 20 ईयर्स और अबव 20 ईयर्स कह रहा है, यानी बिलो 20 ईयर्स क्या होंगे 1/4। 400 का 1/4 कितना होगा 100, इसका सम कितना होगा 400। 400 का वैल्यू क्या कह रहा है क्वेश्चन में 1200, तो 1 का वैल्यू क्या आएगा 3। फिर क्या निकालने के लिए बोल रहा है, देन फाइंड 5/9 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 900, इसका 5/9 कितना होगा 500। 500 इज इक्वल टू कितना होगा 1500, विच इज इन ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक, A, B and C enter into a partnership in the ratio 7/2 is to 1/2 is to 6/5. After 4 months, C withdraws 50% of his share. If the total profit at the end of the year be rupees 21,600, then B share in the profit. ठीक है, अब ये जो रेशियो है 7/2 is to 1/2 is to 6/5, इसको सिंपली हम कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। 7/2 मतलब 3.5, 0.5 हटाएंगे तो इंटू 10 करेंगे, कितना होगा 35, ए का शेयर। ठीक है, बी का कितना है 1/2 यानी 0.5 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 5। सी का कितना है 6/5 यानी 1.2 इंटू 10 करेंगे तो कितना होगा 12। ठीक है, यह आया ए बी सी का रेशियो 35:5:12। ठीक है, कह रहा है आफ्टर 4 मंथ सी ने विड्रॉ कर लिया 50% शेयर, यानी ए का कितना होगा इंटू 12 मंथ्स के लिए, बी का कितना होगा इंटू 12 मंथ्स के लिए, सी का 12 इंटू 4 होगा पहले 4 मंथ्स के लिए, फिर आफ्टर 4 मंथ्स 50% विड्रॉ कर लिया, यानी 12 से 50% 6 चला गया, बचा कितना +6 इंटू कितने महीने के लिए 8 मंथ्स के लिए, यहाँ 4 मंथ्स गया तो बचा 8 मंथ्स। ठीक है, इनको यहाँ ऐसे ही रहने दो, इनको मल्टीप्लाई मत करो, काटने में आसानी होगी, यहाँ सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करो। देखो कितना है 12 इंटू 4 कितना है 48, 6 इंटू 8 कितना है 48, तो कितना होगा 96। 12 से काट दो, यहाँ 12 कटा 8, तो रेशियो क्या निकल कर आया 35:5:8। ठीक है, क्या पूछ रहा है बी का शेयर पूछ रहा है, बी कितना है 5 डिवाइड बाई ये कितना है 40 + 8 48 इंटू 21,600। यहाँ 12 से काटोगे तो 4, यहाँ 12 से काटोगे तो 1 और ये आएगा 800, यहाँ 4 से काटोगे तो 4 और 5 0, यहाँ 5 इंटू 5 25, 5 4 जा 20 22, 2250 विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, A and B started a business jointly. A's investment was thrice the investment of B and the period of his investment was 2 times the period of the investment of B. If B received ₹4,000 as profit, then their total profit is। ठीक है, यहाँ इन्वेस्टमेंट टाइम कुछ भी दिया नहीं है, हमें निकालना है। देखो कैसे निकालोगे, इन्वेस्टमेंट निकालो पहले, क्या कह रहा है A's इन्वेस्टमेंट थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ B,
यानी अगर बी का इन्वेस्टमेंट 1 है, ए का कितना होगा 3, एंड टाइम क्या कह रहा है, पीरियड ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट वॉज 2 टाइम्स द पीरियड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ बी, यानी अगर बी का 1 है तो ए का कितना होगा 2। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, बी का 1, ए का 6। अब इसी का वैल्यू कह रहा है 4000, बी रिसीव्ड 4000 एज प्रॉफिट कह रहा है ना, तो 1 इज इक्वल टू 4000, तो टोटल प्रॉफिट पूछ रहा है, टोटल प्रॉफिट यहाँ कितना है 7, 7 इज इक्वल टू कितना होगा 28,000 विच इज एन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, A and B enter into a partnership with capitals in the ratio 5:4. After 3 months, A withdrew 1/5 of his capital and B withdrew 1/4 of his capital. The gain at the end of 10 months was ₹760. A's share in this profit is, ठीक है, A का कितना है 5, B का कितना है 4, 3 मंथ्स के लिए यानी इंटू 3, यहाँ इंटू 3। ठीक है, 3 मंथ के बाद ए ने विड्रॉ कितना किया 1/5, यानी 5 का 1/5 कितना होगा 1, तो बचा कितना प्लस 4 इंटू 7 होगा, क्योंकि 10 मंथ्स के बाद का प्रॉफिट दिया है। ठीक है, तो यहाँ प्लस कितना होगा 1/4 निकाल दिया बी ने, तो बचा कितना 3 इंटू 7, यहाँ 5 इंटू 3 15 प्लस 4 इंटू 7 28, यहाँ 4 इंटू 3 12, 3 इंटू 7 21, ये कितना होगा 43 और ये कितना होगा 33, टोटल कितना है 336 76। इसी का वैल्यू क्वेश्चन में क्या कह रहा है 760, तो 76 अगर 760 है, क्या पूछा है ए का शेयर पूछा है, ए का कितना है 43, 43 इज इक्वल टू कितना होगा 430 विच इज एन ऑप्शन सी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी एंड सी एंटर इनटू ए पार्टनरशिप विथ ए कैपिटल इन विच ए's contribution is ₹10,000. If out of a total profit of ₹1,000, A gets ₹500 and B gets ₹300, then C's capital is, ठीक है, हमें यहाँ A का कैपिटल पता है 10,000, B और C का नहीं पता है, लेकिन यहाँ प्रॉफिट पता है 1000 में से अगर A का 500 है तो A का कितना होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5 है, जीरो हम नहीं लेंगे, B का कितना है 300 यानी 3, तो C का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, 5 3 गया 8, तो बचा कितना 2, यह आया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो टाइम अगर सेम है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू क्या है, इन्वेस्टमेंट रेशियो होता है, यानी 5 इज इक्वल टू 10,000 होगा। ठीक है, ए का इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000, तो क्या पूछ रहा है, सी का कैपिटल पूछ रहा है, अगर 5 इज इक्वल टू 10,000 है तो 2 इज इक्वल टू कितना होगा 4,000 विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 8 years older than B, the present age of B is, ठीक है, B की अगर हम मान लेते हैं X एज है तो A की कितनी होगी 8 years older, X प्लस 8। ठीक है, इन 10 years कह रहा है, यानी यहाँ 10 ऐड करोगे तो कितना होगा x प्लस 18 इज इक्वल टू A will be twice as old as B was 10 years ago, तो 10 years ago B की एज क्या होगी x माइनस 10, ट्वाइस कह रहा है इंटू 2 करो, तो यहाँ x प्लस 18 इज इक्वल टू 2x माइनस 20, तो x कितना आएगा 38 years विच इज इन ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, राजू's एज आफ्टर 15 years will be 5 times his age 5 years back. What is the present age of राजू? राजू की प्रेजेंट एज मान लो x है, आफ्टर 15 years क्या कह रहा है x प्लस 15 इज इक्वल टू 5 times his age 5 years back, तो 5 होल इंटू एक्स माइनस 5 होगा, तो x प्लस 15 कितना होगा 5x माइनस 25, तो 4x कितना होगा 40, x कितना होगा 10। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राजू,
10 years, विच इज इन ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है,